Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Indoor Learning Academy. We are here with a new video for Class 2 English Unit 5 and the name of the chapter is Funny Bunny. Children, this story is about a foolish rabbit. One day he was resting under a tree. While he was resting under a tree, a nut falls on his head. Then he got scared. He thought that the sky is falling under him. So he thought to tell this to King. So let's see what happens next. Funny Bunny. One day a nut fell on Funny Bunny. Now who is Funny Bunny? Who is Funny Bunny, children? The rabbit. What is the name of the rabbit? The name of the rabbit is Funny Bunny. So he is a rabbit. इसका नाम क्या है? What is the name of the rabbit? The name of the rabbit is Funny Bunny. One day he was sitting under a tree. Then a nut fell on him. Nut मतलब कुछ एक फ्रूट सा रहता है, वो उसके सर पे जाके गिर जाता है. Can you see in this figure? One day a nut fell on Funny Bunny. Who is Funny Bunny here? Rabbit. He is very foolish. Let's see उसके बाद क्या होता है. Ouch! The sky is going to fall, said Funny Bunny. Ouch! हम लोग ouch कब यूज़ करते हैं children? जब हमें कोई दर्द होता है. Ouch! मुझे यहाँ पे मार लगी है. ऐसे बोलते हैं ना. Same way जैसे ही उसके ऊपर नट गिरा, he started telling, ouch! The sky is going to fall. आसमान गिरने वाला है. मुझे ऐसे किसने कहा? फनी बनी ने कहा. I must tell the king. मुझे राजा को बताना पड़ेगा. No children, who is the king of the jungle? Lion. Who is the king of the jungle? Lion is the king of the jungle. Next what happens? जो funny bunny है वो tree के नीचे बैठता है. He thinks that the sky is falling on him. Then he thought to tell this whole incident to king. And who is the king here? Raja. Raja कौन है? Lion. Lion is the king of the jungle. Let's see what happens next. On the way, he met Henny Penny. जैसी वो राजा को बताने जा ही रहा था, वो किससे मिलता है? Henny Penny. Who is Henny Penny? Hen. Henny Penny कौन है? Who is Henny Penny? Hen. What is the name of the hen? The name of the hen is Henny Penny. On the way, he met Henny Penny. The sky is going to fall, said Funny Bunny. Funny Bunny Henny Penny से कहता है कि आसमान गिरने वाला है. I am going to tell the king. मैं राजा को बताने जा रहा हूँ. I will come too. अब ये जो हनी पेनी है क्या बोलता है? कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ. Said Henny Penny. No children, can you see this? What is this? I के साथ apostrophe and one second children. Double L. So what is this? I will. How we will read this? How we will read this? We will read it as I will. So, Henny Penny कहता मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा. And off they went to find the king. वो दोनों साथ में राजा को ढूंढने निकल चलते हैं. Soon they met Cocky Locky. फिर जल्दी से वो एक Cocky Locky से मिलते हैं. कौन मिलता है रास्ते में उनको? Cocky Locky. The sky is going to fall, said Funny Bunny. आसमान गिरने वाला है. ऐसा किसने कहा? फनी बनी ने कहा. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. मैं राजा को बताने जा रहा हूँ. आई विल कम टू. अब ये बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा. सेड कॉकी लॉकी. कॉकी लॉकी क्या कहता है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा. सबसे पहले फनी बनी जाता है. उसके साथ कौन जाता है? फनी बनी के साथ कौन जाता है चिल्ड्रन? फनी बनी के साथ हनी पेनी जाता है. फिर उसके साथ कौन जाता है? कॉकी लॉकी भी बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा. And off they went to find the king. वो तीनों राजा को ढूंढने निकल चलते हैं. On the way they met Lucky Ducky. रास्ते में वो Lucky Ducky से मिलते हैं. Now who is Lucky Ducky? This duck. What is the name of the duck? The name of the duck is Lucky Ducky. रास्ते में कौन मिलता है? रास्ते में Lucky Ducky मिलता है. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. आसमान गिरने वाला है. फनी बनी ने लकी डक्की से कहा कि मैं राजा को बताने जा रहा हूँ. I will come too. अभी फनी बनी लकी डक्की बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा. कौन कहता है ऐसा? लकी डक्की बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा. said Lucky Ducky. And off they went to find the king.
वो सारे निकल चलते राजा को ढूंढने। कौन राजा? लायन। ऑन द वे, रास्ते में दे मेट पुसी गुसी। रास्ते में वो किससे मिलते हैं? रास्ते में वो पुसी गुसी से मिलते हैं। व्हाट इज पुसी गुसी? या घूस, जो कि बिल्कुल थोड़ा सा डक जैसे दिखता है। एंड दिस इज डक एंड दिस इज पुसी गुसी। फाइन चिल्ड्रेन, व्हाट हैपेंस? द स्काई इज गोइंग टू फॉल। वो बोलता है आसमान गिरने वाला है। सेड फनी बनी। फनी बनी ने ऐसे कहा, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू। अब पुसी गुसी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सेड पुसी गुसी एंड ऑफ देम वेंट टू फाइंड द किंग। वो चल पड़ते हैं सबके सब राजा को ढूंढने। ऑन द वे दे मेट वॉक्सी फॉक्सी। रास्ते में वो किससे मिलते हैं? दे मेट वॉक्सी फॉक्सी। लेट्स सी, रास्ते में उन्हें कौन मिलता है? वॉक्सी फॉक्सी। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, दे ऑल सेड वी आर गोइंग टू टेल द किंग। सी, यहाँ पे फनी बनी भी है, हेनी पेनी भी है, घूसी फूसी भी है, लक्की डक्की भी है। सबके सब जाके वॉक्सी फॉक्सी से कहते हैं कि आसमान गिरने वाला है, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। द किंग लिव्स हियर। जो ये वुल्फ है, जो ये फॉक्स है, ये क्या कहता है? व्हाट डिड द फॉक्स से? द फॉक्स बोलता है राजा तो यहीं पे रहता है, राजा तो यहीं पे रहता है। द किंग लिव्स हियर सेड वॉक्सी फॉक्सी फॉलो मी। चलो मेरे साथ, सबके सब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजा से मिलवाता हूँ। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी, हेनी पेनी, कॉकी लॉकी, लक्की डक्की एंड पुसी गुसी। वो जो फॉक्स था इतना क्लेवर था कि वो एक एक करके सारे एनिमल्स को खा जाता है। फाइन चिल्ड्रेन, so what did we learn from this story? We learned that we should not trust blindly to anyone. We should always use our brain before doing anything. देखो यहाँ पे जो फॉक्स था कितना क्लेवर था। उसने कहा कि राजा तो यहीं रहता है, उनको लेके गया और सबको एक एक करके खा जाता है। सब के सब फॉक्स खा जाता है। So children, what are the new words that we have learnt in this chapter? Not, out, met, I am. How we will write I am? देखो, this is how we write I am. This is the short form of writing I am. We can also write it as I am. Fine children, these are the shortcuts. इसे अपन contractions भी कहते हैं. So this, how we will read this? We will read it as I am. Next, I will. This is apostrophe double L. So children, how we will read this? We will read it as I will. And this is of. One more, there is a contraction. We are. इसे कैसे रीड करेंगे? We apostrophe R-E क्या बन जाता है? How we will read this? We are. Fine children, let us repeat the new words again. So what are the new words that we have learned in this chapter? Not, out, met, I am, I will, of and we are. Now let's move to the next slide. Reading is fun. One day, dash fell on funny bunny. एक दिन क्या होता है? फनी बनी पे नट गिरता है या स्काई गिरता है? क्या गिरता है? फनी बनी पे एक नट गिरता है. नट क्या है? What is nut? Nut is a type of fruit. A nut. So what is the correct answer here? A nut. What I will write here? Nut. And I will. This is the correct answer. Now let us read this first sentence. One day, a nut fell on Funny Bunny. Next. Funny Bunny wanted to tell. किसे बताने जा रहा था? राजा को बताने जा रहा था या कॉक को बताने जा रहा था या स्काई को बताने जा रहा था? किसे बताने जा रहा था? वो राजा को बताने जा रहा था. And who is king of the jungle? Lion is the king of the jungle. वो राजा को ढूंढते ढूंढते किससे मिलता है? फॉक्स से मिलता है. फॉक्स ने क्या करा? उन सबको अपनी होशियारी दिखाई, सबको एक एक करके खा गया. नेक्स्ट, हु सेड दिस वर्ड्स इन द स्टोरी? आउच, द स्काई इज फॉलिंग डाउन. ये किसने कहा था सबसे पहले? सबसे पहले फनी बनी ने कहा था. क्यों कहा था? क्योंकि उसके सर के ऊपर एक नट गिर गया था. नेक्स्ट, आई मस्ट टेल द किंग. ये किसने कहा था? फनी बनी ने कहा था. क्यों कहा था? कि जब वो ही वॉज रेस्टिंग अंडर ए ट्री, ऑल ऑफ सडन अ नट फॉल्स ऑन हिम. फिर उसने क्या लगा? उसे लगा कि द स्काई इज फॉलिंग, मुझे जाके राजा को बताना चाहिए. सबसे पहले किसने कहा था? फनी बनी ने कहा था. द किंग लिव्स हियर. ये किसने कहा कि राजा यहाँ रहता है?
क्लेवर फॉक्स. एंड फॉक्स का नाम क्या था? वॉक्सी फॉक्सी. ये किसने कहा था? क्लेवर फॉक्स. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द फॉक्स? वॉक्सी फॉक्सी. फॉलो मी, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजा से मिलाता हूँ. ये किसने कहा था? ये भी क्लेवर फॉक्स ने कहा था. क्लेवर फॉक्स का नाम क्या था? वॉक्सी फॉक्सी. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड? एंड में क्या होता है एनिमल्स के साथ? वॉक्सी फॉक्सी जो क्लेवर फॉक्स रहता है वो सारे एनिमल्स को खा जाता है. वॉक्सी फॉक्सी एट ऑल द एनिमल्स एट द एंड. नेक्स्ट, लेट्स लिसन. फनी बनी, रैबिट, कॉकी लॉकी, कॉक, हेनी पेनी, hen, pussy goosey, goose, foxy foxy, fox. Fine children. Now let's move to the next slide. Say aloud. Now what you have to do here children? We have to read aloud. जो से पढ़ना है. Let's start doing this. Ouch, pouch, couch. Let's repeat. Ouch, couch and pouch. Next, follow, hollow, swallow. Let's repeat. Follow, hollow and swallow. Next, down, town, frown. Let's repeat. Down, town, frown. Last one is bray, clay, sway. Bray, clay and sway. Now let's write. चलो लिखते हैं. Circle the odd one out. Now you have to read this. इसमें से एक odd one out है. We have to circle it. So let's start doing this. Bun, sun, fun, gun and one. This is the odd one out because सब UN से end हो रहे हैं. Can you see here? सब किससे end हो रहे हैं? UN से end हो रहे हैं. सिर्फ एक ही word है जो कि ONE है. So this is the odd one out. Next one is bed, fed, led, said and read. Let's repeat. Bed, fed, led, said. Said is odd one out. Next, he, me, be, tea and we. So इसमें से odd one out is, let's repeat. He, me, be, tea. So we'll circle this tea. Next we have we, say, he, pay and they. Let's repeat and find out which is the odd one out. We, say, he, pay and they. There is odd one out. Now let's continue. Find the opposites of the given words and make sentences. Now children, what you have to do here is you have to write the opposites. इनके opposites लिखने हैं और उस पे एक एक sentence लिखना है. Let's start doing. Fat का opposite होता है thin. So let's make a sentence. Rahul is a thin boy. Rahul is a thin boy. मतलब बहुत ही पतला लड़का है. राहुल क्या है? बहुत ही पतला लड़का है. Next, fall, start, end. The chapter is going to end. The chapter is going to end. Next, आप दोनों अपने आप से कर लेना. कम का opposite है go. बिग का ऑपोजिट है स्मॉल. नो चिल्ड्रन, बाकी का आप लोग खुद से कर लेना. फैट का थिन, स्टार्ट का एंड, कम का गो, बिग का स्मॉल. एंड आप लोग इसके ऑपोजिट्स भी लिख लेना, साथ ही में इसके सेंटेंसेस भी लिख लेना. फाइन चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव अहेड. Fill in the blanks with the correct word. Now children, what you have to do here is we have to fill in the blanks with the correct words. Let's start doing this. I read a funny story of a funny rabbit. One day a net fell on his head. Story हमेशा past tense में read की जाती है. Fine. So fall या fell. Fell is the correct answer. On his head. He thought that the sky was falling. Sky was falling. So he went to tell the king. इसलिए क्या करता है वो बताने जाता है. किसे बताने जाता है? किसे बताने जाता है चिल्ड्रन? वो राजा को बताने जाता है. So he went to
tell the king. Fine children? On the way, he met different animals. रास्ते में उसे बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं. रास्ते में उसे बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं. All of them joined him. All of them क्या करते हैं? Join कर दे. Join का मतलब होता है सारे उसके साथ चल पड़ते हैं. Fine children? चलो let us इतना करें अपन. Let's start. Who is going to read? Let me read it out. I read a story of Funny Bunny. I read a funny story of Funny Rabbit. One day, a net fell on his head. He thought that the sky was falling, so he went to tell the king. On the way, he met different animals. All of them joined him. Next answer is join. This is also past tense. At last में क्या होता है? They meet या met? They met a clever fox. Last में क्या होता है? वो एक फॉक्स से मिलते हैं. It took them to a forest. वो फॉक्स क्या करता है? उन्हें फॉरेस्ट लेके जाता है. फॉक्स क्या करता है? उन्हें फॉरेस्ट लेके जाता है. And ate them all. सबको खा जाता है. Let's repeat. I read a funny story of a funny rabbit. One day, a net fell on his head. He thought that the sky is falling on. So he went to tell the king. On the way, he met different animals. All of them joined him. At last, they met a clever fox. He took them to a forest and ate them all. तो एक दिन क्या होता है? एक जो फनी बनी है, he was sitting under a tree. He was sitting under a tree and he was resting. अचानक से क्या गिर जाता है उसके सर पे? अचानक से कोई फ्रूट गिर जाता है. उसे क्या लगता है कि उसे लगता है कि sky is falling. वो बोलता है मुझे राजा को बताना चाहिए. वो जाता है तो रास्ते में कौन मिलता है? उसे बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं. सभी एनिमल्स को लेके चलता है वो. फिर लास्ट में उसे फॉक्स मिलता है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉक्स? द नेम ऑफ द फॉक्स इज वॉक्सी फॉक्सी. रास्ते में उसे फॉक्स मिलता है. फॉक्स को बताता है कि मुझे राजा को मिलना है. फॉक्स तो बहुत क्लेवर एनिमल. फॉक्स को क्लेवर एनिमल बोला जाता है. सो फॉक्स ने क्या किया? वो एक एक करके सारे एनिमल्स को खा जाता है. नाउ रीअरेंज दिस वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस. चिल्ड्रन, यहाँ पे एक चीज हम लोग छोड़ दिए थे. जस्ट अ सेकेंड. यस, हाँ, ये आप लोग खुद से कर लोगे. मैं भी थोड़ा सा करके बताती हूँ. कम का ऑपोजिट है गो. आई गो टू स्कूल एवरी डे. आप लोग अलग अलग सेंटेंसेस भी बना सकते हो, या तो आप टीचर वाला सेम भी बना सकते हो. आप अपने मन से कोई भी दूसरा सेंटेंस बना सकते हो. आई गो टू स्कूल एवरी डे. मैं रोज स्कूल जाता हूँ या मैं रोज स्कूल जाती हूँ. फुल स्टॉप. नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ बिग? स्मॉल. I have a small car. I have a small toy भी लिख सकते हो. I have a small toy. Fine children? Now fall का opposite है rise. The sun rises in the east. The sun rises in the east. Fine children? इसको एक बार मैं आपको रिपीट करा देती हूँ. इसमें करना है क्या आपको? यू हैव टू फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ देम एंड आफ्टर फाइंडिंग द ऑपोजिट्स यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस. फैट, थिन. राहुल इज अ थिन बॉय. फॉल, राइज. द सन राइजेस इन द ईस्ट. फुल स्टॉप. स्टार्ट, एंड. द चैप्टर इज गोइंग टू एंड. फुल स्टॉप. कम का ऑपोजिट इज गो. आई गो टू स्कूल एवरी डे. फुल स्टॉप. Big ka small. I have a small toy. I have a small car. Now we have completed this. Now rearrange these words to form sentences. Now children, what you have to do here is you have to form the sentences by rearranging some words. यहाँ पे कुछ words दिए हुए हैं and जो words दिए हुए हैं वो सारे jumble करके दिए हुए हैं. What we have to do here is we have to frame one complete sentence. One day. So what are the words? On Funny Bunny fell a nut one day. So what will be the sentence? One day a gnat
fell on funny bunny. One day a gnat fell on funny bunny. Next sentence, falling down the sky is said funny bunny. The sky is falling down. The sky is falling down. ये किसने कहा? Said funny bunny. Said funny bunny. Fine. Next, king I must tell. What are the words? King I must the tell. So इसे कैसे बनाएंगे अच्छा वाला सेंटेंस? इसको जंबल करके क्या बन जाएगा? I must tell the king. मुझे सारी बातें किंग को बतानी चाहिए. I must tell the king. Next, lives here the king. The king lives here. ये किसने कहा था? फॉक्स ने कहा था. क्यों कहा था? क्या कि वो बहुत होशियार एनिमल है. The king lives here. Fine children, please you can complete this and make sure that you can put a full stop at the end of the statement. Next, change one letter of each word and make another rhyming word. For example, fell and tell. Now children, आपको क्या करना है यहाँ पे? There are some words given here. देखो यहाँ पे मैंने F को हटा के मैंने T बना दिया. ये rhyming words बन गए. Fell का tell. Same. Down का क्या बनाएंगे? Just a second. Let me rub this so it will be clear to all. Down का down, TOWN. मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने सिर्फ D को हटा के T लिख दिया तो ये down का down बन जा गया. Met का wet बन गया. Set भी बन जाएगा. Way का say बन जाएगा. ले बन जाएगा. King का क्या बन जाएगा? Ring बन जाएगा. Sing बन जाएगा. जैसे आपको लिखना है आप वो वाला वर्ड लिख सकते हैं. RING ring. सो उनका क्या बन जाएगा? मून बन जाएगा. नून बन जाएगा. बैट का रैट, मैट, सैट, बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे. सो चिल्ड्रन प्लीज कंप्लीट दिस विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स. नाउ लेट्स डू. Look at the pictures. Give the animals the right names. No children, there are some pictures given here. हमको क्या करना है? We have to write the names of the pictures. जैसे यहाँ पे पिक्चर दिए हुए हैं, इन पे क्या लिखना है? यहाँ पे खाली बॉक्स दिया हुआ है. What we have to do here is we have to write the names. Let's start doing this. This is cock. This is hen. This is इनका baby chick. Next, this is fox. And this is duck. Let's repeat it again, children. This is cock. This is hen. This is chick. This is fox. And this is duck. Now, let's move ahead. Picture story. Now, look at the pictures. Narrate the story in your language and then in English. Now children, this is very interesting. आप अपने खुद की भी स्टोरीज बना सकते हो या आपकी मामा की हेल्प ले सकते हो. यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम योर सिबलिंग्स. फाइन चिल्ड्रन, व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, यहाँ पे 4 पिक्चर्स दी हुई है. 4 पिक्चर्स आर गिवन. हमें इसको अच्छे से स्टोरी बनाना है. अच्छे से पहले पिक्चर को देखो. क्या हो रहा है देखो यहाँ पे. अच्छे से पहले समझो. रैबिट है पिक्चर में. वी हैव ए टाइगर. वी हैव कैरेट्स ऑल्सो. वी हैव एलिफेंट ऑल्सो. फाइन, चलो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ. आप लोग भी अपने मन से कोई भी स्टोरी बना सकते हैं. नाउ, वन डे देयर लिव्ड मेनी रैबिट्स इन द जंगल. एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन. One day there lived rabbits in the jungle. They were feeling very hungry. उन्हें बहुत कस के भूख लगी हुई थी. They were looking for food here and there. अचानक से they got carrots. Can you see? They're having carrots in their hand. अचानक से उनके हाथ में कैरेट आ जाता है. They started eating and they were dancing also. कैरेट मिल गया क्योंकि उन्हें बहुत तेज की भूख लगी थी. जैसे उन्हें कैरेट मिला वो बहुत खुश हो गए और सब के सब डांस करने लगे. अचानक से जैसे वो खा रहे थे, all of a sudden they hear a roar sound. लायन की आवाज़ आ गई, टाइगर की आवाज़ आ गई. अचानक से दे हियर द रोर साउंड ऑफ टाइगर. टाइगर बहुत जोर से रोर करता है. ओह, फिर सब के सब रैबिट डर गए. ऑल ऑफ गॉट स्केर्ड.
सब डर गए, सब अफ्राइड हो गए। देन वो कहीं छुपने लगे, वो ढूंढने लगे कि टाइगर कहाँ पे है। तो अचानक से देखा कि टाइगर इनको खाने के लिए इनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। देन कैन यू सी, डर के मारे ये भाग रहे हैं। कैन यू सी इन दिस पिक्चर, ऑल ऑफ सडन एन एलिफेंट कम्स देयर। अचानक से एक एलिफेंट आ जाता है एंड एलिफेंट इनका बहुत अच्छा दोस्त रहता है। एलिफेंट इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ दीज रैबिट्स। सो एलिफेंट को बोलते हैं, यार एलिफेंट राजा अब हमें बचा लो, वो किंग आ रहा है, हम वो टाइगर आ रहा है हमें खाने के लिए। तो एलिफेंट क्या करता है, देखो यहाँ पे एक एक करके वो रैबिट को अपने सूंड पे, अपने टंग पे बिठाता है और इसकी हेल्प से वो यहाँ पे चले जाता है। देखो फर्स्ट वाला रैबिट पहुँच गया, देन सेकेंड वाला रैबिट ही क्लाइम्स अ ट्रंक, देन ही गोज, देन फॉलोड विद द थर्ड रैबिट। कैन यू सी थर्ड रैबिट क्या कर रहा है, ऐसे चढ़ रहा है, ऐसे चढ़ के वो यहाँ से चले गए, बच गए सब के सब। एंड दे क्रॉस द रिवर, फाइनली द टाइगर वॉज लेफ्ट अलोन। देन टाइगर एलिफेंट से, कैन यू सी ऑल दिस रैबिट्स आर सेव नाउ, एंड द एलिफेंट ने टाइगर को भगा दिया। लाइक दिस वे द स्टोरी एंड्स चिल्ड्रेन। सो हियर विद द फ्रेंड इज हेल्प्ड, द फ्रेंड ऑफ रैबिट्स हेल्प्ड टू सेव द लाइफ, नहीं तो वो टाइगर जो इनको खा जाता। सो फाइनली क्या हुआ, सारे रैबिट्स यहाँ पे सेव हो गए। फाइन चिल्ड्रेन। सो आप लोग अपने मन से भी ऐसी स्टोरी बना सकते हो, आप अपनी मम्मा की हेल्प ले सकते हो। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, फादर, मदर, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर ऑल्सो। फाइन चिल्ड्रेन। That's all for today, children. I hope you have loved this video. We'll meet you soon with a new video. Till then, bye, take care and stay blessed. Thank you.